Hello dear friends, welcome to my channel Engineering All in One. Today I have come up with a video with a topic from the civil engineering fluid mechanics, or fluid mechanics is also in the mechanical engineering. So in the fluid mechanics, open channel flow OFCs, in that chapter a topic channel transition is there. So I have come up with a video related to the channel transitions. Now channel transition is done by two ways: either we increase the hump or we contract the width. So we will see here a case where we increase the hump, and in the hump increment we will see the subcritical flow. Case second will be the supercritical flow. I will discuss this later. Now first I will discuss subcritical flow. Now first I will try to make here a hump. I will try to make. This is the hump, and its height is delta Z. Now this will be the total energy line TEL, and this will be the Y1 depth of flow, and this will be the E1, and this will be the E2, and this will be the Y2 at section 2, and this will be the YC, यानी क्रिटिकल डेप्थ। तो बात करेंगे हम यहाँ पे चैनल ट्रांजिशन के बारे में। तो पहला जो केस हम लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो हम मेजर करते हैं with respect to the datum. So here specific energy is measured from here, and here at section 2 specific energy is measured from here. So obviously E1 will be greater than E2. By which amount? By how much amount? By delta Z. That is E1 will be equal to E2 plus del Z. Now we will plot a graph here. We will see a graph here. We will see a graph here. And a specific energy curve is drawn y with respect to E. Now you may have saw this. Now at section, we will take section as E1. Corresponding to E1, the depth will be Y1. Corresponding to E2, the depth will be E2, depth will be Y2, and corresponding to EC, critical energy, the depth will be YC. This is what I have shown here. Now in between del 1 E1 minus E1 minus E2, if we take, delta Z comes out. Now this we will represent by del Z. So case number 1, when the height of hump is del Z. Case number 1, then E2 is equal to E1 minus del Z. First I will tell you why we have took these two. हमने ये दो क्यों ली? हालांकि ये दो डेप्थ्स भी तो we may have took these two depths, but when we know for a subcritical flow y is greater than yc, तो yc यहाँ पे है और ये जो y यहाँ पे है, y1 and y2 are here. So we have took these two depths. Now case number 1 is when we introduce the hump here del z, then E1 will be equal to E2 plus del Z. So del Z can be calculated by E1 minus E2. Now case number 2. सपोज हम चाहते हैं कि हम del Z यानी कि हमप की जो हाइट है यहाँ पे हम इसको और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं? भाई मैक्सिमम del Z कितना हम
प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डेल मैक्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो ये होगी यहाँ तक डेल जेड मैक्स, दिस विल बी द डेल जेड मैक्स। तो इस केस में क्या होगा, E2 जो होगा E2 विल बी शिफ्ट टू EC, E2 will get shifted to EC, E2 will get shifted to EC and Y2 will get shifted to YC। तो इसका मतलब विड्थ डिक्रीज हो रही है, हाई जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस वाली कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन कहा जाता है, और जो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ होगी, और जो एनर्जी होगी वो क्रिटिकल एनर्जी होगी। तो अगर हमें डेल जेड मैक्स निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल जेड मैक्स E2 विल बी इक्वल टू EC, यहाँ पे E2 EC तक आ गया, और जो Y2 YC को अप्रोच कर गया, Y2 यहाँ पे है, Y2 इज हियर, ये अप्रोच कर गया YC। तो at half height del z max E2 will be equal to EC and Y2 will be equal to YC। तो del z max कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, E1 जो स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 होगी, जो स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 होगी यहाँ पे, और उसको E2 what is E2 here, now E2 is equal to E critical, दोनों के दरमियान हम डिफरेंस निकालेंगे, del z max will be equal to E1 minus E2, और you can also say E1 minus EC, क्योंकि जो EC है, EC यहाँ पे वो E2 के बराबर है, क्योंकि E2 शिफ्ट हुआ EC से। तो ये केस नंबर 2 था। अब हम क्या चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि डेल जेड मैक्स को, हम्प की जो हाइट है, यहाँ पे जो हम्प है, हम और इंक्रीज करना चाहेंगे, वी विश टू इंक्रीज डेल जेड मैक्स मोर। अगर हम डेल जेड मैक्स को और इंक्रीज करेंगे डेल जेड मैक्स, तो ये जो EC होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ की ओर, EC डैश, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, EC will get shifted to E2 डैश, या E2 will get shifted to E2 डैश। बट जो एक कंडीशन होगी, इस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 इट विल बिकम लेसर, ये EC क्रिटिकल एनर्जी से लेस हो जाएगी। तो flow will not happen, at least there should be critical energy for the flow to possible or greater than it, but not less than it, so flow will not possible। but हम चाहते हैं कि हम ऑब्स्ट्रक्शन, हम डेल्टा मैक्स को और इंक्रीज करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, तो इस वाली कंडीशन जहाँ पे ये फ्लो ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो स्टॉप हुआ, इस वाली कंडीशन को चोकिंग कंडीशन कहा जाता है। तो E2 को हम वापस EC डैश तक ले आएंगे, हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे E1 जो स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1, स्पेसिफिक एनर्जी एट दिस सेक्शन, हम इसी को इंक्रीज करेंगे, वी विल इंक्रीज E1 so that flow will occur and also we will increase del z max to our desired level, हम del z max को भी इंक्रीज करेंगे और फ्लो भी पॉसिबल हो, तो हम क्या करेंगे, हम E1 को ही इंक्रीज करेंगे। तो जब हम E1 को इंक्रीज करेंगे यहाँ, तो E1 शिफ्ट हो जाएगी E1 डैश तक, और जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी Y1 डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, Y1 इंक्रीज हुआ, अपस्ट्रीम जो डेप्थ थी वो इंक्रीज हुई। यहाँ पे मैं आप जैसे कि आप यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट हाफ हाइट ग्रेटर देन डेल जेड मैक्स E2 इज लेस देन EC, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया. चोकिंग कंडीशन occurs. टू सॉल्व it we increase specific energy at section 1. Now after the establishment of the flow downstream condition flow will be critical. तो जो डाउनस्ट्रीम कंडीशन यानी कि जो Y2 सेक्शन है इस पे क्रिटिकल एनर्जी आ जाएगी वापस से. E2 डैश विल बी इक्वल टू EC एंड Y2 डैश विल बी इक्वल टू YC. और जो अब जो E1 डैश होगी वो होगी बराबर E1 डैश विल बी इक्वल टू EC प्लस डेल जेड डैश. आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ में डेल जेड डैश जो था वो E2 डैश और E1 डैश के दरमियान डिफरेंस थी. तो अब हमने क्या किया, अब हमने E1 को शिफ्ट किया और E2 खुद ब खुद यहाँ पे EC डैश पे शिफ्ट हुआ. तो जो हाइट अब होगी वो डेल जेड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी. तो अब जो E1 डैश होगा वो किसके बराबर होगा, एक तो होगा वो डेल जेड E1 डेल डैश प्लस आएगा E क्रिटिकल. तो आई होप यू हैव गॉट दिस नाउ. And I hope you have got this. Now we will see a graph between Y and del Z max. तो क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओरिजिनली जो सेक्शन थी वो Y1 और Y2 और जो डेप्थ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो डेप्थ थी वो Y1 और Y2 थी. अब जब हमने E2 को अब डेल जेड को हमने डेल जेड मैक्स किया तो जो Y2 सेक्शन पे जो सेक्शन 2 पे जो डेप्थ थी Y2 वो डिक्रीज हो गई टिल डेल जेड मैक्स Y2 डिक्रीजेस अप टू YC व्हेन वी अप्रोच डेल जेड मैक्स. और उसके बाद फ्लो जो हुआ वो क्रिटिकल हुआ और वो कांस्टेंट रह गया. जो डेप्थ थी एट सेक्शन 2 दैट शिफ्टेड टू कांस्टेंट लेवल. और जो Y1 ओरिजिनली प्रेजेंट थी सेक्शन 1 पे वो कांस्टेंट जा रही थी डेल जेड मैक्स तक. लेकिन जब हमने डेल जेड मैक्स पे हमें जो स्पेसिफिक एनर्जी वो इंक्रीज करनी पड़ी सेक्शन 1 पे, तो उससे क्या हुआ, जो हमारी डेप्थ थी वो Y1 से Y1 डैश तक आ गई यानी कि वो इंक्रीज हो गई. यहाँ तक डेल जेड मैक्स तक कांस्टेंट थी Y1 और फिर वो इंक्रीज हो गई. और जो डेल जेड मैक्स तक जो Y2 सेक्शन 2 पे जो डेप्थ थी फ्लो डेप्थ वो डिक्रीज हो रही थी YC तक. और फिर यहाँ पे क्रिटिकल फ्लो मेंटेन हुआ और उसके बाद वो कांस्टेंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट. आई होप यू हैव गॉट दिस. I have tried my best.